सिर्फ एक बार मैं पूछ लेता हूँ किसी से, मेरी आवाज आ रही है और स्लाइड भी दिख रही है? यस सर। चलो, थैंक यू। It take just 1.5. So good morning, friends. Once again, we are almost into the last part of our unit number 2, which is regarding the reservoirs, reservoir planning, reservoir uh, capacity, etc. And now we are into the last part, which is the reservoir sedimentation. For the next again 4, 5, 6, 7 slides, this sketch will be there on my screen as my habit is. So you can concentrate on this sketch. If you wish, you can draw also. It is from your textbook, maybe from Punya. So sedimentation or the silt flow into the reservoir is one of the biggest problem from the point of view of the life of reservoir. Where what happens when the flooded river reaches to reservoir or reaches to the dam? Naturally, due to the obstruction of the water into the dam, the velocity of the river flow reduces slowly, slowly, and at last, at the wall, at the dam, it becomes zero. So, due to this reduction in velocity of the flood river water, I am specifically telling you the flood, because due to this reduction in velocity, whatever particles that river carry, that is the silt and other debris also, those particles will not move forward, and then they start settling due to the gravitational force. This causes the problem to the dam, because the dam is meant for storing the water. So the area or that part of the dam which is stored or which is reserved for storing the water is being occupied by the silt, which we cannot control 100%. To some extent we can control that, we'll see. So that is the problem. So the river carries silt eroded from the catchment area during rains, that is during floods. Okay, this is the basic sedimentation in stream. The extent of erosion, that is the extent of the silt load in the flood, depends upon the following four main factors. The first is the nature of the soil of catchment area. I think up till now, you are all conversant with the catchment area. Catchment area is the area through which the rainwater reaches to the stream or supplies the water to the stream. That is that particular area. Every stream has got its own catchment area. So nature of the soil in the catchment area. If the soil is erodible, if the soil can be moved with the water very easily, then there will be more silting. If the catchment area is hilly, then also velocity is more, so it will carry more silt, and that silt will be deposited either in the river or in the dam. Second is the topo. If the catchment area is having harder surface, then there will be definitely less silting. Topography of the catchment area, that is whether the topography is flat, catchment area's topography, or whether the topography is hilly, undulated. More hills, more slopes, more velocity, more silt carrying. Vegetation cover. If the catchment area has got dense forest, then naturally the forest will arrest the soil. The roots of the plants will not allow the soil to flow with the water, and therefore the vegetation cover is very important. Therefore we always say, है ना, अभी आगे आगे आप ऐसे जाएंगे तो कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट प्लान वगैरह रहता है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, उसमें भी आप कर सकते हैं.
तो उसमें वेजिटेशन कवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भरपूर झाड़ लगाइए, फॉरेस्ट लगाइए, खेती होना हुई तो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज द एग्रीकल्चर ऑल्सो अवॉइड्स or reduces the flow of the silt. So that is important. And last is the intensity of rainfall. And the rainfall intensity, if it is very low, then there are definitely lesser surface runoff, and the surface runoff less, then the silting will be less. You can say, this is again on the right side cross section of the dam, on the left side as per our convention, है ना, ऐसा हम हरदम बताते हैं कि डैम और फ्लो वगैरह हरदम लेफ्ट साइड बताते हैं. तो लेफ्ट साइड में यू कैन सी द वाटर इज फ्लोइंग इनटू द डैम, along with the water certain coarser aggregate and certain finer aggregate or finer silt, coarse silt and fine silt. So coarse silt means sand, grit particle aggregates, large boulders, etc. And the finer silt means the actual silt from the soil. And you can see at the bottom, away from the dam, the coarser sediment gets deposited due to the reduction in velocity of the flow. So naturally they have more density, more specific weight, they settle earlier. As the water moves forward, the flood water, it carries again the suspended solids, the colloidal solids, okay, the silt. As it reaches to the dam, as the velocity of the flow becomes zero, velocity of the flood becomes zero, it will settle near to the dam in the bed of the river. And also, as due to the settlement of this silt, the clear water will be at the top. Relatively clear water will be at the top, bit turbid or silty water at the bottom, near to the dam, and away from the dam, coarse sediment deposition is there. Okay, so therefore these various factors which affect the silting that we have seen. Then the nature of the soil of the catchment area, as we have seen, soft soil, possible sheet erosion, hard soil carry lesser silt, topography, that is steep slopes, high velocity, erode surface easily, intensity of rainfall more runoff, more erosion, catchment area, sufficient vegetation, forest, lesser erosion. These are the factors to be considered in your mind. Now we will move on to the next parameter. Whatever this sediment or the silt which gets transported through the flood water into the river and to the dam is divided into two parts, is divided into two heads. The first is the bed load and another is the suspended load. Very important. ये जो silt आती है या जो sediment भी बोलते हैं उसको, another word, silt or sediment, along with the flood water is divided or is classified into two parts. One is the bed load and the suspended load. As the name suggests, the bed load means which flows along the bed or which is dragged along the bed of the stream. But this is much smaller. Its quantity is much less. This bed load only contains the heavier particles, like the stone particles, like the sand particles. Sometimes big boulders are also floated away due to the buoyancy. But as its density is more as compared to the flow of water, this quantity of bed load is less, which is 10 to 15% of the suspended load. So suspended load is almost 80 to 85%. Suspended load means the silt which remains in suspension or which remains in colloidal form. Why it remains in suspension? Because the vertical component of the eddies, इसमें जो भंवरे फॉर्म होते हैं जिसको एडीज करके बोलते हैं, है ना, हम सबको मालूम है कि नदी के फ्लो में भंवरे रहते हैं. These are called as the eddies, and these eddies moves upwards or moves in any haphazard rotational motion, है ना. रोटेशनल मोशन इसका रहता है, आपने कहीं तो भी पढ़ा होगा. तो ये एडीज के कारण ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है ये पानी में रहते हैं. यदि पानी में एडीज नहीं है, इफ दैट वाटर इज साइलेंट, जिसको हम शांत पानी बोलते हैं, तो एडीज नहीं रहते और ये पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं. ठीक है.
So these are the two types. When the stream approaches, as I have told you, that when the stream approaches or the flow approaches the reservoir or the dam, the velocity is much reduced or it becomes slowly zero. The carrier or the coarser particles settle in the head reaches. कोर्सर पार्टिकल यानी ये जो हेवियर पार्ट हेड रीचेस यानी डैम से दूर of the reservoir, while the finer particles are kept in suspension for sufficient time till they settle just the upstream side of the dam. Some of the fine particles may also pass through the sluices. इसलिए क्या है ये यहाँ पे डैम में अभी आगे में हम पढ़ेंगे भी कि ये जो सिल्टिंग नहीं होना चाहिए, कम से कम सिल्टिंग होना चाहिए, इसलिए डैम के लोअर पार्ट में at the lower section of the dam there are certain sluices or the openings are given. एक ओपनिंग दिया रहता है जिसको स्कावरिंग sluices करके बोलते हैं. उनका काम ही ये रहता है कि इसके ऊपर की जो सिल्ट है वो पानी के साथ में इसके साथ बह के जाए. These are called as the scouring sluices. If some time or other we will get the opportunity to visit a dam, specifically Totlado Dam, there such sluices are provided. Okay. Some of the suspended material or some of the silt also gets flown away with the flood water over the spillway. डैम का जो स्पिलवे रहता है बरसात में जब बहुत पानी के साथ में फ्लड और मड सिल्ट वगैरह आती है तो वो पानी के साथ में भी बह जाती है ओवर द स्पिलवे. अब आगे में हम और एक कंसेप्ट समझेंगे जिसको बोलते हैं डेंसिटी करंट. एज फ्रेंड्स यू हैव सीन, just now we have seen there are three types of the flow which is coming or which is approaching to the dam. The one is relatively clear water, the another is turbid, उसके नीचे में है turbid inflow और उसके और नीचे में है coarser sediment जो है वो है. So this is not coarser sediment is the deposited material. It does not flow with the water when it reaches to the dam. डैम के थोड़े दूरी पे ही क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है तो ये अपना ठिकाना जमा लेते हैं या रिवर बेड में सेटल हो जाते हैं कोर्सर मटेरियल. लेकिन जो लाइटर मटेरियल रहते हैं जो सस्पेंशन में वो पानी के साथ में आते हैं और नदी जैसे डैम के पास आती है वैसे वैसे नीचे सेटल होते हैं और ऊपर में क्लियर वाटर रहता है. लेकिन उसको भी क्योंकि वाटर इज एंटरिंग इट हैज आल्सो गॉट सर्टेन मूवमेंट. सो definitely you can see two layers of the flow or you can say two currents of the flow. So these two currents are called as the density currents. Now we will go into the definition. You must have got what is the meaning of these density currents. Is defined as the gravity flow of fluid under another fluid of equal density. दो फ्लूइड है, दो फ्लो है जिनके फ्लूइड की डेंसिटी एक ही है. पानी की डेंसिटी इधर भी ऊपर में वाटर है नीचे पे भी वाटर है. ओनली द अपर वाटर इज क्लियरर, द डाउन वाटर और बॉटम वाटर इज विथ सिल्ट. सो देयरफॉर वी फाइंड टू फ्लो, upper flow clear flow, bottom flow with the turbid flow. So such flows of the fluid due to the gravity, that is one fluid over another, such flows are called as the density currents. Clear water stored in the reservoir, two fluids, that is the clear water stored and the inflow heavy muddy turbid water during the floods have different densities, and the heavy turbid water flows along the channel bottom towards the dam under the influence of gravity over the clear water stored as shown in this figure. Okay, so such two flow currents are called as the density currents due to the different density. The rate of silting in case of the reservoir reduces if the density currents are vented by proper location and operation of the outlet and sluice. Very important statement. These density currents, if the density currents are allowed to flow or some outlet is provided like the scouring sluices in the dam, then
the silting into the reservoir can be very easily reduced because silting reduces the capacity of the reservoir. डैम में जैसे जैसे सिल्ट जमा होती जाती है, सालों साल सिल्ट जमा होते होते ऊपर ऊपर जाती है, तो नेचुरली पानी जमा होने की जगह कम होती जाती है. That is the capacity of the dam reduces. Okay, when this silt reaches 80% of the capacity of the dam, I am making a very important statement. When this silt reaches a 80% capacity of the dam, we say that the dam is now useless, or that is the life of the dam or life of the reservoir. वो डैम ऊपर का 20% पानी कोई काम का नहीं है, उससे क्या वो ऊपर ही पानी दिखेगा. दैट वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पस. So when the dam gets filled 80% with the silt, we say that the life of the reservoir is over. Okay, we will see again later. So the density currents are needed to be flown out or vented. Vent देना है ना, बाहर जाने के लिए रास्ता देना, by proper location and operation of the outlet and sluice gates. तो उसमें सिल्ट कम जमा होगी. एखादे नदी के पानी में, फ्लड के वाटर में कितना सेडिमेंट है वो कैसा गिनेंगे? उसके लिए कोई हमारे पास में थर्मामीटर है क्या, कोई इक्विपमेंट है क्या? तो वो हम एक्चुअली ऐसा करेंगे कि एट द वेरियस डेप्थ ऑफ द वाटर वी विल फिजिकली कलेक्ट द फ्लड वाटर either over the dam or by some arrangement over the river, and we will collect the water from the various depth from the river, and we will make that water to evaporate into the oven, and we will find that how much silt that water contains. So okay, or that water, that sample can be filtered and sediment removed, sand dried, the sediment load measured in the units of part per million. Okay, part per million or gram per liter, etc. Okay, so this is the how the sediment is found out or the silt is found out into the mud water, into the turbid water. There are no accurate devices to measure the bed load. ये बेड लोड जो है वो कितना है ये निकालने का कोई अभी सही तरीका हमें मिला नहीं है ना. दो लोड है, बेड लोड है और सस्पेंडेड लोड है. तो ये बेड लोड कितना है ये नहीं निकला, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि 15% ऑफ द सस्पेंडेड लोड है. एक डैम में कितना सिल्ट है वो हम इवेपोरेट करके या उसको फिल्टर करके निकाल सकते हैं. अब अपन आगे में आते हैं फिर से लाइफ ऑफ द रिजर्वायर. मैंने आपको अभी बताया था कि विथ मोर एंड मोर सिल्टिंग, जैसे जैसे सिल्ट डैम में आते जाती है, द लाइव और द इफेक्टिव स्टोरेज है ना. देखो अभी half of the lecture is over and somebody has come. Tomorrow I will not allow. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये क्लास चालू है. With more and more silting, जैसे धरण में ज्यादा माती है ना, सादा सिंपल हम हिंदी मराठी में मट्टी बोलेंगे, माती बोलेंगे, जिसको हम सिल्ट भी बोलते हैं, और उसके साथ में कुछ सैंड भी आती है और उसके साथ में कुछ गिट्टी भी आती है बहते हुए. तो विथ मोर एंड मोर सिल्टिंग, जैसे ये सिल्ट जैसे जमा होती है डैम में, द लाइव और द इफेक्टिव स्टोरेज इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड. हमने देखा है लाइव स्टोरेज यानी क्या है, तो यूजफुल स्टोरेज भी बोलते हैं उसको, इफेक्टिव स्टोरेज भी बोलते हैं. अर्लियर वी हैव सीन व्हाट इज लाइव स्टोरेज, डेड स्टोरेज, बफर स्टोरेज, सील्ड स्टोरेज, etc. I will again request you to please go through the notes, etc. I have also put on your group the MCQs. Please go through those MCQs. Though we have not covered yet unit number 3, but you can understand it very well with earlier knowledge, because on that your test is based. So as more and more silting goes on, the live storage or effective storage is gradually reduced. When its capacity is reduced to 20% of the designed capacity, the life finishes or ceases. जैसे मैंने आपको बताया कि डैम में जो पानी स्टोर होता है उसका जो लाइव स्टोरेज है, या जिसको यूजफुल स्टोरेज भी हम बोलते हैं, ये जैसे धीरे धीरे सिल्ट जमा होने के कारण कम होते जाता है, और जब सिर्फ 20% ऑफ द लाइव स्टोरेज बचता है,
पहले समझो 100 क्यूबिक मीटर होगा, सील्ट जमा होते होते पहले साल में 1 क्यूबिक मीटर, 2, 3, 4, 5, कभी 10 क्यूबिक मीटर, एक आध साल ज्यादा बारिश हो गई, और जब 80 क्यूबिक मीटर पानी में सिल्ट जमा होगी, या 80 क्यूबिक मीटर सिल्ट जमा होगी, और सिर्फ 20 क्यूबिक मीटर पानी जमा है, यानी 20%, तो फिर समझना कि डैम अभी कोई उपयोगी नहीं है, एंड दैट इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, now we are moving into very important concept, that is the trap efficiency. And as its name is trap efficiency, it is denoted by the symbol, Greek symbol eta. बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैप एफिशिएंसी डिनोटेड बाय ईटा। क्या है भाई ये ट्रैप एफिशिएंसी? वेरी सिंपल, आपको पहले हिंदी में बता देता हूं मैं, फिर बाद में अपन अंग्रेजी में पढ़ते हैं। यू ऑल नो, आपको सबको मालूम है कि फ्लड वाटर के साथ में धरण में, डैम में सिल्ट आती है, ओके, और वो सिल्ट वो डैम में जमा होती है, डिपॉजिट होती है। सो वी कैन से इन अनदर वर्ड कि हर डैम को सिल्ट रोक के रखने की, सिल्ट को पकड़ के रखने की, हर डैम की अपनी अपनी कैपेसिटी है, हर डैम की अपनी अपनी एफिशिएंसी है। सो ट्रैप एफिशिएंसी यानी कुछ नहीं, हर धरण की, हर डैम की जो फ्लड के साथ में सिल्ट आने वाली है, वो सिल्ट को रोके रखने की क्षमता इज कॉल्ड एज द ट्रैप एफिशिएंसी। एंड एवरी डैम will have different trap efficiency according to its size, according to its capacity, etc., that we will learn immediately again. So the reservoir sedimentation in terms of the trap efficiency eta. Now what is this trap efficiency eta? Is the percent inflowing sediment which is retained in the reservoir. यानी हर साल कितना परसेंट सेडिमेंट जो फ्लो के फ्लड के साथ में आता है वो धरण में रुक जाता है, या वो डैम उसको रोकता है, उसको ट्रैप एफिशिएंसी को करके बोलते हैं, है ना। डेफिनेशन कभी पूछते हैं एग्जाम में, नोट्स भी आती है। सो ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ द रिजर्वायर इज द परसेंट इनफ्लोइंग सेडिमेंट, इज द परसेंट इनफ्लोइंग सेडिमेंट, यानी अंदर आने वाला जो सेडिमेंट है उसका कितना परसेंट, दैट इज द परसेंट इनफ्लोइंग सेडिमेंट विच इज रिटेन्ड इन द रिजर्वायर, वो धरण में कितना रोका है। अंदर आने वाले 100%, यदि 100 क्यूबिक मीटर सिल्ट आती है, माती आ रही है, तो उसका कितना परसेंट वो डैम रोके रखता है और बाकी का फ्लड के साथ में निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं उसकी ट्रैप एफिशिएंसी। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है आगे में कि ये जो ट्रैप एफिशिएंसी है, धरण में सिल्ट रोके रखने की क्षमता, इज द फंक्शन, ये काय का फंक्शन है? It is the function of ratio of reservoir capacity, is the function of ratio of reservoir capacity to the total inflow. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी समझ लीजिए कि ये जो ट्रैप एफिशिएंसी ईटा है ये काय के ऊपर डिपेंड है। पहले ये सिंपल है कि ये धरण की जो क्षमता है, कितना बड़ा धरण है जिसको रिजर्वायर कैपेसिटी बोलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। सो दिस trap efficiency is directly proportional to reservoir capacity, and this trap efficiency is inversely proportional, है ना। मैंने अलग भाषा में बोल रहा हूं आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजर्वायर कैपेसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्लड इनफ्लो, कितना फ्लड वो धरण में आता है। तो ये ट्रैप एफिशिएंसी है, धरण में सिल्ट रोके रखने की क्षमता, ये टोटल फ्लड इनफ्लो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लड इनफ्लो, या और दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि दिस ट्रैप एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर टू द फ्लड इनफ्लो, है ना। ट्रैप एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी, ट्रैप एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनफ्लो, therefore trap efficiency is equal to some constant multiplied by capacity upon inflow. Okay, we can say in this way, or we can also say that trap efficiency is the function of the capacity divided by inflow. I think you must have got the clear understanding. I have told you in three aspects or three types. Now with the numerous dams,
बहुत सारे धरणों का भारत में, प्रदेश में इसका स्टडी किया गया, और ऐसा बाद में ऐसा ये ग्राफ, वन ऑफ द साइंटिस्ट, वन ऑफ द हाइड्रोलॉजिस्ट हैज come to this conclusion and plotted this graph, which is the graph between capacity to inflow ratio of the various dams and its sediment trapped percent or the trap efficiency. Again I will repeat, this is the graph. ये जो हमने अभी लॉ देखा कि भाई this trap efficiency is function of capacity and inflow. This law has been proved by this graph that capacity inflow ratio x axis के ऊपर में और y axis के ऊपर में eta, that is the trap efficiency. यदि ये प्लॉट करते हैं तो हमें ये दिखता है भाई कि जैसे जैसे कैपेसिटी इनफ्लो रेशो बढ़ते जाता है वैसे वैसे ट्रैप एफिशिएंसी बढ़ते जाती है. कैपेसिटी इनफ्लो रेशो इंक्रीजेस, द ट्रैप एफिशिएंसी इंक्रीजेस. Again, what will it mean? That the capacity inflow ratio increases, the silt arresting capacity or silt taking capacity of the reservoir of the dam increases. Listen the statement very carefully. When the capacity upon inflow increases, the capacity or the efficiency of the reservoir or the dam to trap the silt increases. अब अगेन आई विल मेक द स्टेटमेंट, और जो आगे में और क्लियर ही होगा आपको. कैपेसिटी इनफ्लो रेशो कब बढ़ेगा ये तो समझा ना अभी. कैपेसिटी इनफ्लो रेशो बढ़ा तो ट्रैप एफिशिएंसी या सिल्ट रोके रखने की क्षमता बढ़ गई. अब कैपेसिटी इनफ्लो रेशो कब बढ़ेगा? जब धरण की कैपेसिटी बढ़ेगी, पहला. दूसरा, इनफ्लो कम होगा, है ना. कैपेसिटी अपॉन इनफ्लो है, रेशियो है. कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये रेशो बढ़ेगा, इनफ्लो कम होगा तो ये रेशो बढ़ेगा. अब इसके क्या मतलब होते हैं, क्या मायने हैं, दैट विल लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट विद द गिवन इनफ्लो रेट, यानी इनफ्लो रेट यदि कांस्टेंट है तो ट्रैप एफिशिएंसी डिक्रीजेस विद द रिडक्शन इन रिजर्वायर कैपेसिटी, है ना. अभी हमने देखा ना कि रिजर्वायर कैपेसिटी कम हो गई तो ट्रैप एफिशिएंसी कम हो गई. इनफ्लो रेट वही है, यानी नदी वही है. वो नदी के ऊपर में यदि हम छोटा धरण बनाते हैं, यानी वो धरण की कैपेसिटी कम रखते हैं, तो उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट कम रहेगा, उसमें ट्रैप एफिशिएंसी कम रहेगी. और वही इनफ्लो रेट सरीका ही है, यानी वही नदी है, और वो नदी के ऊपर में यदि हम बड़ा धरण बनाते हैं, बड़ा धरण है ना जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसमें सेडिमेंटेशन या सिल्टिंग ज्यादा रहेगा क्योंकि कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो हैज इंक्रीज्ड. इनफ्लो इज कांस्टेंट. ओके, आई थिंक यू गॉट. हेंस द रेट ऑफ सिल्टिंग हायर इन इनिशियल स्टेजेस. अभी इस पर से हम ये भी बोल सकते हैं, ये जो हमने किया कि भाई इनफ्लो रेट इज कांस्टेंट, द डैम इज कंस्ट्रक्टेड, नाउ विद द टाइम देयर इज सिल्टिंग इन द रिजर्वायर. डैम में धीरे धीरे सिल्टिंग होता है और उसकी कैपेसिटी कम होते जाती है, यानी उसका कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो. इनफ्लो तो वही है, नदी वही है, धरण भी वही है. हर साल उसमें जो फ्लड आता है उसके कारण उसमें सिल्ट जमा होती है, और वो सिल्ट जमा होने के कारण उसकी कैपेसिटी कम होती है. तो कैपेसिटी टू इनफ्लो तो सही का ही है. सो कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो कम होते जाता है एज द डैम बिकम्स ओल्डर एंड ओल्डर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट. So then trap efficiency also reduces. So indirectly we can say as the dam becomes older and older, its trap efficiency reduces due to reduction in capacity. So rate of the silting highest in initial stages. ऐसा हम बोल सकते हैं. शुरू में धरण के नए नया जब है तब शुरू में सिल्टिंग ज्यादा रहेगी, लेकिन धीरे धीरे कम होते जाएगी. क्यों कम होते जाएंगे? क्योंकि कैपेसिटी उसकी रिड्यूस होती जा रही है. Therefore, the complete filling of the reservoir with silt may take a longer time. A small, अब और इसमें से दूसरा conclusion, a small reservoir on a large stream has a very small capacity to inflow ratio, है ना. A small reservoir, small capacity वाला धरण बड़े नदी के ऊपर में having large stream, having large inflow rates, has a very small capacity to inflow ratio.
So therefore the trap efficiency for such reservoir is extremely small, and the stream passes most of its inflow so quickly that finer sediments do not settle. ठीक है, बड़े नदी बड़ी, डैम छोटा, तो फ्लड का पानी पूरा डैम में से बह के जाएगा तो पूरी सिल्ट उसमें से बह के जाएगी, सिल्टिंग कम होगा. उसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड, लार्ज रिजर्वायर ऑन ए स्मॉल स्ट्रीम, छोटी नदी है उसके ऊपर बड़ा धरण यदि बनाया तो नेचुरली उसका इनफ्लो कम है लेकिन कैपेसिटी टू इनफ्लो ज्यादा है. तो ऐसे इसमें जो भी सिल्ट आएगी पूरी के पूरी वो डैम में जमा होगी, तो इसलिए उसकी ट्रैप एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी. Such a reservoir may retain water for several years and permit almost complete deposition of the sediment. ठीक है, अभी हम आगे में चलते हैं जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, और ये मैंने नीचे में न्यूमेरिकल बताया भी है साथों साथ आपको समझने के लिए. आगे में समय मिलता है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व भी करते हैं, लेकिन ऐसा ही है सेम टू सेम. एंड द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लाइफ ऑफ रिजर्वायर, ये प्रोसीजर एग्जाम यदि आपकी रिटर्न एग्जाम हुई तो ये पूछते भी है बहुत बार, है ना. बहुत सिंपल है. अभी तक आपके यदि ध्यान में ट्रैप एफिशिएंसी कंसेप्ट आया होगा, और ट्रैप एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी एंड द इनफ्लो ऑफ द फ्लड. और बाकी जो मैंने बताया कि फ्लड कांस्टेंट है, कैपेसिटी कम है तो ट्रैप एफिशिएंसी कम, फ्लड कांस्टेंट है या डिस्चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटी ज्यादा है तो ट्रैप एफिशिएंसी ज्यादा. ऑल दीज कंसेप्ट्स यू हैव गॉट, आई अंडरस्टैंड. थोड़े फास्ट भी हम जा रहे हैं, फिर भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप फिर से नोट्स पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा. तो ये कैसे रिजर्वायर का लाइफ निकालते हैं वो हम अभी देखते हैं. अब हमें अर्लियर वी नो द फर्स्ट स्टेप, वी नो द रिजर्वायर कैपेसिटी व्हेन इट इज इनिशियल रिजर्वायर और फुल रिजर्वायर कैपेसिटी वी नो. ओके, वी नो द इनफ्लो रेट, फ्लड इनफ्लो रेट, ये हमें एग्जाम में भी दिया रहता है. और वैसे भी हम कॉमन सेंस से या जनरल इससे बोल सकते हैं कि जब डैम नया नया बना है तो उसकी रिजर्वायर कैपेसिटी हमको मालूम है, कितनी पानी रखने की क्षमता है और उसमें कितना फ्लड आने वाला है ना. रन ऑफ हम निकाल सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे मेथड है रेनफॉल के ऊपर से. तो इनफ्लो रेट भी हमने निकाल लिया, तो हमने कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो निकाल लिया. फर्स्ट स्टेप ऑफ द फुल रिजर्वायर कैपेसिटी एंड द इनफ्लो इज कांस्टेंट, इनफ्लो हर साल उतना ही आने वाला है. तो कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो निकाला एट द रिजर्वायर फुल स्टेट and corresponding to this capacity to inflow ratio from the graph. ओके, ये जो हमारे पास में ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो इस पर से हमने ट्रैप एफिशिएंसी निकाल लिया भाई to the full capacity of the reservoir. So first step is we have found out the trap efficiency when the reservoir is full और capacity to inflow ratio when the reservoir is full, वो हमने निकाल लिया और उस पर से ट्रैप एफिशिएंसी निकाला. ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्व किया हुआ न्यूमेरिकल है नीचे में कि वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट इनफ्लो निकाला है. ये वॉल्यूम दिया है, उसको स्पेसिफिक वेट, उसका वेट दिया रहता है एग्जाम में, वेट ऑफ द सेडिमेंट इनफ्लो डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट, वेट किलो न्यूटन में दिया रहता है, उसको स्पेसिफिक वेट से डिवाइड किया तो वो मिलियन क्यूबिक मीटर में सेडिमेंट इनफ्लो का वॉल्यूम आता है. रिजर्वायर की इनिशियल कैपेसिटी 30 मिलियन क्यूबिक मीटर है. एनुअल फ्लड इनफ्लो, ये सेडिमेंट इनफ्लो है बोला 0.9 मिलियन क्यूबिक मीटर, ऑफ व्हाट, ऑफ फ्लड इनफ्लो 60 मिलियन क्यूबिक मीटर. तो कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो हो गया 30/60, दैट इज 0.5. corresponding to this 0.5, what is the trap efficiency that has been found from this graph and that has been shown on the next slide. So corresponding to this 100% capacity, volume 30 million cubic meter and the inflow is 60 million cubic meter, 30/60 is 0.5, capacity to inflow ratio. Corresponding to this, the trap efficiency from this graph. एग्जाम में आपको टेबल दिया जाता है, वो कैसा रहता है आगे में देखते हैं. एग्जाम में ग्राफ नहीं देते, वो आपको टेबल देते हैं कि भाई अलग अलग कैपेसिटी के लिए ये ट्रैप एफिशिएंसी है. कुछ नहीं, वो रेडीमेड टेबल से या इंटरपोलेट करके आपको निकालना है.
तो 0.5 कैपेसिटी टू इनफ्लो के रेशियो के लिए ट्रैप एफिशिएंसी 0.96. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड द टोटल कैपेसिटी. ये स्टेप और इसका सॉल्यूशन यहां देखते हैं आप. सो डिवाइड द टोटल कैपेसिटी इनटू एनी सुटेबल इंटरवल से 10%. यानी क्या करना है कि जैसे 10% या 20% जो भी आपको कम स्टेप में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके ऊपर से आपको जाना है. लेकिन आखिरी में हमने अभी डेफिनेशन देखा है कि इन द व्हेन द रिजर्वायर इज फुल विद द सिल्ट अप टू 80%, यानी 20% जब उसकी कैपेसिटी रहती है तो वो 100 to 20%. ओके, दैट इज 80% फिलिंग बाय सिल्ट. इसको जितना समय लगेगा उसको लाइफ ऑफ द रिजर्वायर बोलते हैं. तो इसलिए हमें 100 to 20% इसको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करना है. 10% से कीजिए, 100, 90, 80 वगैरह ऐसा, उसमें आपको 10 स्टेप्स लगेगी. लेकिन यहां हमने क्या किया है कि इसको 10% की बजाय 20% में डिवाइड किया है परसेंटेज. 100, 80, 60, 40, 20, और 20 में हम रुक गए क्योंकि हमें मालूम है 20% में लाइफ खत्म हो जाता है. या एग्जाम में आपको देते हैं कि रिजर्वायर कैपेसिटी 20% या 15% है, देन द लाइफ सीजेस और कंप्लीट्स. तो आपको वो 100 to 15% लेना है, जो भी दिया है वो. लेकिन यहाँ पे 20% दिया है तो हमने 100, 80, 60, 40 एंड 20 ऐसा निकाला है. और करस्पॉन्डिंग टू दिस, जैसे 100% के लिए 13 मिलियन क्यूबिक मीटर कैपेसिटी है, 80% के लिए 80 इंटू 30 दैट इज द 24, 60 के लिए 60 इंटू 30 दैट इज 18 मिलियन क्यूबिक मीटर. इन दिस वे फॉर द वेरियस परसेंटेजेस कैपेसिटी वी हैव फाउंड आउट द वेरियस वॉल्यूम्स. है ना, डैम पूरा भरा है 100% तो उसकी 30 मिलियन क्यूबिक मीटर है. 80% भरा है तो 80% ऑफ द 30 दैट इज 24. इन दिस वे करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट इंटरवल्स जनरली 20% लेते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम 10%, या हमको ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो 10%, उसमें थोड़े कैलकुलेशन बढ़ेंगे, हमें समय ज्यादा लगेगा. So divide the total capacity into suitable interval like the 10% or 20%. Find the trap efficiency for a reduced capacity, यानी 90%, 80% कैपेसिटी के लिए. फिर से ये ग्राफ या टेबल हमें जो दिया जाता है उस पर से हम ये कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो पहले निकालेंगे फॉर द डिफरेंट कैपेसिटी एंड द इनफ्लो फॉर द डिफरेंट वॉल्यूम. इनफ्लो तो कांस्टेंट है हर साल जो हमें दिया जाता है. तो कैपेसिटी जो है 24 अपॉन इनफ्लो, 15 अपॉन इनफ्लो, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो और हमारा ग्राफ या टेबल से वी विल फाइंड आउट द ट्रैप एफिशिएंसी. ठीक है, अब आगे की जो 3 स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन व्हाट विल डू, वी विल फाइंड द एवरेज ट्रैप एफिशिएंसी. जैसे 100 के लिए 0.96 है, 80 के लिए 0.955 है, ये हमने टेबल से लिया है ना. वो कैसा आगे एक सॉल्व न्यूमेरिकल और यही देखते हैं आगे. इसका एवरेज निकला 0.96 प्लस 0.955 डिवाइड बाय 2, द ट्रैप एफिशिएंसी इज 0.9575. अगेन एवरेज ऑफ दिस टू 0.9525, एवरेज ऑफ दिस टू 0.94. आई थिंक यू अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व द न्यूमेरिकल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. अब ये ट्रैप एफिशिएंसी हो गई, यानी धरण में सिल्ट जमा करने की क्षमता हो गई. आउट ऑफ व्हाट, जितनी सिल्ट हर साल आती है डैम में वो हमें दिया है. इट कम्स 0.3 मिलियन क्यूबिक मीटर. वो हमने निकाला, शुरू में आपको बताया था कि वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द सिल्ट. सो फॉर एवरी ट्रैप एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सिल्ट will give you the total volume of the silt that will come into the dam for this period 100 to 90, 100 to 80. 20 साल में इतनी सिल्ट आएगी. 80 to 60 ये जो निकाला है 0.28 to 0.2857 etc. Please understand the average efficiency is found out trap efficiency corresponding to this average efficiency multiplied by the silt inflow. Now the flood inflow नहीं, silt inflow, उससे मल्टीप्लाई किया तो एनुअल सेडिमेंट ट्रैप्ड, हर साल कितना सिल्ट आया. और अब इतना जो सिल्ट है, दिस सिल्ट इज बीइंग डिपॉजिटेड बिटवीन
the volume 30 to 24 यानी 6 मिलियन क्यूबिक, ये हर साल आया. So this much volume, or for 1 year this much volume, okay, और this much volume for 1 year, then 30 से 24 में जैसे 6 क्यूबिक मीटर है, 6 मिलियन क्यूबिक मीटर है, तो 6 मिलियन क्यूबिक मीटर वॉल्यूम भरने को कितना समय लगेगा? हर इतना वॉल्यूम भरने के लिए 0.2872 भरने के लिए 1 साल लगा, तो 6 मिलियन क्यूबिक मीटर के भरने को कितना समय? So 30 minus 24, that is 6, divided by 0.2872. So that ratio is the time in year required to fill 0.2872, that is 20.9 years. वैसे ही 80 to 60, इसमें 24 से 18 यानी फिर से 6 मिलियन क्यूबिक मीटर, 18 और 6 24, डिवाइडेड बाय ये इनफ्लो सेडिमेंट रेट पर ईयर, तो we will get the year required to fill this much sediment. In this way all the other are found out up to 20% capacity, और सबकी टोटल किया तो this is the life of the reservoir, 85.4 years, or you can say 85 years. This is the procedure which is being adopted. जैसे अभी जो हम वर्ड्स में बोलेंगे, डिटरमाइन द सेडिमेंट इनफ्लो बाय टेकिंग द सैंपल. सैंपल का सेडिमेंट इनफ्लो यहाँ एग्जाम में आपको दिया ही रहता है. सेडिमेंट इनफ्लो ये निकालिए, मल्टीप्लाई द टोटल एनुअल सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रैप एफिशिएंसी, convert this sediment into hectare deposited in 1 year, divide the volume interval by the sediment deposited and find out the years. Repeat the procedure for interval 80, 70, 20, 10, etc. and then sum the total. It will give you the life of the reservoir. ठीक है. Again यही जो आपको अलग अलग स्लाइड में बताया वो ये है. हम थोड़ा आखिरी पार्ट पहले कवर कर लेते हैं, फिर समय मिला तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यही अभी जो देखा था, रिजर्वायर सेडिमेंट कंट्रोल मेथड्स, ये है. सेडिमेंट रिजर्वायर आना नहीं चाहिए, रिजर्वायर में सिल्ट आना नहीं चाहिए उसके लिए. सो फर्स्ट इज द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द साइट. इसलिए साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैचमेंट एरिया जो है जहां से फ्लड आने वाला है वो यदि उसमें यदि बहुत सॉफ्ट और लूज सॉइल है और बहुत स्टीप स्लोप है तो मे कैरी सेडिमेंट लोड, एंड देयरफॉर द डैम में गेट मोर एंड मोर सिल्ट, है ना. लेकिन ये कोई हमारे हाथ में नहीं रहता है. बहुत बार ठीक है हमारे पास में चॉइस है बहुत, तो बात अलग है. यदि नहीं है तो वी कैन सिलेक्ट whatever other parameters govern for the site selection, but this is one of the parameter, that is proper selection of the reservoir site. Control of sediment inflow, है ना. आप सबको मालूम है, आपने शायद अपने एरिया में देखा होगा कि हमारे यहाँ सॉइल कंजर्वेशन एक डिपार्टमेंट है. माती भूमि अधिग्रहण कोई तो भी मराठी हिंदी में अभी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, संधारण वगैरह कुछ तो भी बोलते हैं. वो डिपार्टमेंट क्या करता है कि ये जो कैचमेंट एरिया है, ये कैचमेंट में प्लांटेशन करता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे करता है, पिट्स करता है, ट्रेंचेस करता है, नाले वगैरह जो रहता है उसको रॉक से रोक देते हैं, उसको बंडिंग करते हैं. तो ओनली पर्पज इज टू कंट्रोल द सिल्ट, टू कंट्रोल द सेडिमेंट. देयर आर टू थिंग्स दैट विल बी सर्व्ड. उससे फायदे क्या होते हैं? एक तो नदी में सिल्ट कम आएगी, पहली बात, और दूसरा जो अच्छी जो फर्टाइल जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड का सेडिमेंटेशन इरोजन कम होगा. तो उसको बोलेंगे हम कंट्रोल ऑफ द सेडिमेंट इनफ्लो. वेरियस कंट्रोल्स, बाय कंट्रोलिंग द चेक डैम्स, बाय डूइंग द ट्रेंचेस, है ना. बहुत सारे आपने देखे हैं. प्रॉपर डिजाइनिंग एंड रिजर्वायर प्लानिंग. रिजर्वायर का जब डिजाइन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब तो उसमें स्लूइसेस देते हैं, उसमें कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट होने के लिए जगह रखते हैं ज्यादा. डिपेंड, इसका स्टडी किया जाता है. ऑल द सेडिमेंटेशन एक्सेट्रा प्रॉपर स्टडी इज बीइंग डन एंड द नेसेसिटी प्लानिंग इज डन. कंट्रोल ऑफ सेडिमेंट डिपॉजिट, जो डिपॉजिटेड सेडिमेंट है उसको निकालने के लिए स्काउरिंग स्लूइसेस बोलते हैं उसको. Scouring sluices, these are provided at the bottom of the dam so that the silt which is deposited at the bottom can be removed. Removal of the sediment deposit,
बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक आधे धरण को 10 20 30 साल हो गए, तो वो उसमें सिल्ट जमा होती है, तो धूपकाले में जनरली डैम ड्राई हो जाता है या बहुत कम पानी रहता है। तो उस समय में ऑल द वाटर इज बीइंग रिमूव्ड, और या बाद में जो जो जगह खाली है वहां से उसमें से सिल्ट निकाली जाती है ना। आपके एरिया में है बहुत सारे छोटे तालाब है जिसको माझी मालगुजारी तालाब बोलते हैं, मामा तालाब। तो वहां का आपने देखा होगा, आप भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स हैव दिस टैंक्स, स्मॉल टैंक्स। सो देयर द डिपॉजिटेड सिल्ट हैज बीन रिमूव्ड। वहां की जो गाड़ जिसको बोलते हैं तालाब का निकाल के वो खेतों में दे देते हैं या कहीं आजू बाजू निकालते हैं। दैट इज वन ऑफ द मेथड टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, दैट इज बाय रिमूवल ऑफ द सेडिमेंट डिपॉजिट। इरोजन कंट्रोल इन द कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया में जो इरोजन है उसको रोकेंगे। फिर से बर्न्स, चेकिंग गलीज, फॉरेस्टेशन, रीग्रासिंग, कंट्रोल ग्रेजिंग, provision of vegetation screen helps in reducing the sheet erosion. These are the precautions taken. Okay, at last. Now, अभी थोड़ा हमारा एक आपके सिलेबस में है इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह, वो कभी तो भी आगे में हम डिस्कस करते हैं, एग्जाम में तो उसके ऊपर आया नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल देखते हैं और वी विल सी मे बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर द इंस्ट्रूमेंटेशन और आगे की यूनिट में वो थोड़ा है आपके नोट्स में, आप जरूर जाइए। So this is the numerical to find out the life of the reservoir. The following information is available regarding the relationship between trap efficiency and capacity inflow ratio. ये आपको दिया जाता है, कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 1। ठीक है, ये ग्राफ नहीं देते आपको, एक कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो देते, और करस्पॉन्डिंग टू दैट कैपेसिटी इनफ्लो रेशियो द ट्रैप एफिशिएंसी इज गिवन। 0.1 के लिए 87, 0.2 के लिए 0.93 etc. that is given. So either you can get directly corresponding to this capacity inflow ratio the trap efficiency, or you can find in between by interpolation. Find the probable life of the reservoir with an initial reservoir capacity of 13 million cubic meter. अभी हमने देखा था वही न्यूमेरिकल है, reservoir capacity of the initial or the new reservoir capacity 13 million cubic meter, एनुअल फ्लड फ्लो जो आ रहा है वो 16 मिलियन क्यूबिक मीटर है, हर साल जो पानी आता है वो 60 मिलियन क्यूबिक मीटर है, 60 दशलक्ष घन मीटर बोलेंगे, 30 दशलक्ष घन मीटर। इसमें जो सेडिमेंट आता है फ्लड के साथ में वो है 36 लाख किलो न्यूटन, इसका वेट दिया है 36 लाख किलो न्यूटन। वी ऑल नो that the weight or the density is equal to weight or mass per unit volume, or volume is equal to the mass or the weight upon density। तो ये weight को यदि हम density से divide करते हैं तो हमें volume में मिलेगा, क्योंकि बाकी सब चीजें volume में है। So assume a specific weight of sediment is equal to 12 किलो न्यूटन पर m क्यूब, ये दिया ही है specific weight और the density। इसको यदि हम specific weight से divide करते हैं तो हमें जो सिल्ट है, सेडिमेंट है, वो वॉल्यूम में मिलेगा। सो देयरफॉर and it has been told here the useful life of the reservoir will terminate in 80% of initial capacity, है ना। ये कभी कभी 75 देते हैं, 90 देते हैं, 70, तो आपको उस हिसाब से रिजर्वायर लाइफ निकालना है। सो एनुअल सेडिमेंट इनफ्लो इज इक्वल टू दैट 36 लाख किलो न्यूटन, ये दिया है, डिवाइडेड बाय इसका यदि हम स्पेसिफिक वेट से डिवाइड करते हैं तो विल गेट इन वॉल्यूम। द सॉल्यूशन इज अगेन हियर, वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट इनफ्लो 3.6 into 10⁶ upon 12, दैट इज 0.3 मिलियन क्यूबिक मीटर, है ना। स्पेसिफिक वेट दिया है 12 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, उससे डिवाइड किया तो हमें ये वॉल्यूम में सेडिमेंट आया। ये स्टेप समझ लीजिए, the weight divided by density is given in volume, that is 0.3 million cubic meter, very important parameter we got। initial reservoir capacity 30, annual flood flow 60, therefore capacity to inflow ratio is 30/60 is 0.5। ठीक है, फिर ये टेबल हमने बना लिया है, जैसे हमने लास्ट में देखा था कि हमको क्या बताया गया है कि रिजर्वायर जब 80% भर जाता है, यानी उसकी कैपेसिटी 20% रहती है, तो वो उतने उसको जितना समय लगेगा सील्ट से भरने के लिए
या फील होने के लिए, तो वो दैट इज द लाइफ. देयरफॉर वी विल फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम 100 to 20, और 100 to 20 को हम 20 में डिवाइड करते हैं, 20% में, ना कि 10% में. 10% से करेंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा एक्यूरेसी आएगी, लेकिन ज्यादा समय लगेगा. सो 100, 80%, 60%, 40%, 20%. Corresponding to these different percentages, the reservoir capacity is found out. 100% के लिए तो हमें 30 मिलियन क्यूबिक मीटर दिया है, 80 के लिए 24, 60 के लिए 18, 40 के लिए 12, 20 के लिए 6. कैसे है आपको मालूम ही है. 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, 20% मल्टीप्लाइड बाय 30 मिलियन क्यूबिक मीटर, देयरफॉर 6 मिलियन क्यूबिक मीटर. Corresponding to these capacities, कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो निकाला. इनफ्लो तो फिक्स है हमारा हर साल 60 मिलियन क्यूबिक मीटर, देयरफॉर 30 अपॉन 60.5, 24 अपॉन 60.4, 18 अपॉन 60, 12 अपॉन 60, 6 अपॉन 60, ये रेशियो निकाला. अब वो जो हमें टेबल दिया है यहाँ पे 0.4 वगैरह वगैरह फॉर डिफरेंट कैपेसिटी टू इनफ्लो रेशियो, ट्रैप एफिशिएंसी. सो ये टेबल से हमने ट्रैप एफिशिएंसी निकाला कि 0.5 के लिए 0.96 है, 0.4 के लिए दिया है, 0.3 के लिए दिया नहीं होगा, 0.2 या 0.1 जो भी दिया है, 0.5 के लिए दिया, 0.4 के लिए, 0.3, 0.2 सब के लिए दिया है. तो ये ट्रैप एफिशिएंसी हमने यहाँ पे लिख लिया, या इंटरपोलेट करके निकाला, और फिर एवरेज ट्रैप एफिशिएंसी बिटवीन 100% एंड 80% इज वर्कड आउट बाय डूइंग द एवरेज ऑफ दिस टू. So 0.9575 is equal to 0.96 plus 0.955, 0.95. इसका जो एवरेज है is this, ये दोनों का एवरेज is this, ये दोनों का ये, और फिर multiplied by this average by this 0.3, that is the sediment inflow. So that will give you the sediment inflow per year in this range 100 to 80 होने के लिए पर ईयर कितना है. लेकिन अभी 100 to 80% में कितना वॉल्यूम है, 30 मिलियन क्यूबिक मीटर एंड 24, इसका डिफरेंस 6 मिलियन क्यूबिक मीटर. सो 6 डिवाइडेड बाय दिस 0.2872 will be the number of years to fill the dam between 100 to 80%. In the same way, up to 20% we have found out the numbers. We will sum it. It will be total averaging is 85 years. We have done this numerical 2 times. पहले भी समझा दिया, अभी भी समझा है ना. अभी बाकी जो है न्यूमेरिकल यू सॉल्व ऑन योर ओन प्लीज फ्रॉम योर नोट्स, और some numericals are given in your notes also. Lot of the numericals are given. So